Greetings from myself, Dr. Jyoti Sachdeva, State Program Officer, Directorate of Family Welfare for Maternal Health and Family Planning. So today I want to talk about addition in contraceptive basket that we made in 2016. So you all know that I'm talking about injection MPA. So that was the injectable that we introduced in the national program in 2016, and since then we had a leaping performance of this method, and it took up very well along with, although it was rolled out along with another contraceptive that is Chaya. So both of them did well. So there was some unmet need, which maybe the women did not want sterilization, did not want IUCD. And when these two methods came, so many more could benefit. So doubtlessly, this was a successful rollout. So we all know that we use this MEC wheel whenever in doubt. And when we look at this DMPA and NETN, that is the injectable contraceptives, and we move around and we can see that most of the conditions are category 2, excepting this deep vein thrombosis. I mean, including there is no problem with diabetes, liver disease is 3, SLE is 3, anemia is 1. So it actually improves anemia. So this time we are also highlighting the relationship between contraceptives, especially hormonal contraceptives, between family planning contraceptives and anemia and HB, buildup of HB. So unexplained vaginal bleeding anyway is contraindication for most of the things. So you can give injectables in fibroid, in PCOS, in of course breast cancer we do not give, and then in gestational diabetes, any age, any parity, any even postpartum we can give after 6 weeks. Breastfeeding women also are not affected. So after 6 weeks even breastfeeding women can be given pre-cesarean, post abortion 7 days के अंदर हम दे सकते हैं, है ना. सेप्सिस में जिसमें IUCD नहीं दे सकते हैं उसमें देते हैं. So we have gone around and we have found only very few conditions where we cannot give. And अभी मैंने जो mention नहीं करा, that is hypertension beyond 160, which is category 3, and then most of the things, migraine of course, and cardiovascular diseases. So barring these conditions, जो बहुत कम होती हैं young women में, they will generally not have these, but those who have to opt for another method, but this then is very suitable to most of the women. Now recently, this is what we used to give, and then we used to say कि इसको सीधा रखना है ताकि इस कैप पे पार्टिकल्स नहीं हो जाए और फेलियर नहीं हो, और 2-3 और प्रिकॉशंस की इसको कहाँ रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है. सो सिंपल टू स्टोर. तो इसके इतने सारे हमारे एसेट्स थे, मगर फिर हमारे पास आया ये सबक्यूटेनियस लगाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक और रूट. सो दिस वी रोल्ड आउट इन 23 इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, और अब हमने सारे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है, और धीरे धीरे हम नंबर ऑफ सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं. तो आज के मेरे वीडियो का ये भी पर्पज है कि हमें ये पता रहे कि हमारे बास्केट में ये, कई लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्योंकि इसकी क्वालिटी में 1-2 बैचेस में प्रॉब्लम आई थी, उनके पास आईएम नहीं है, तो विमेन आर हैविंग टू गो बैक. सो ऑफ कोर्स हमने ये स्ट्रेटेजी करी थी कि अगर आप वापस, अगर ये नहीं अवेलेबल है और मार्केट से ऑब्वियसली हम आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं कराना चाहते, स्विच टू IUCD, स्विच टू अनदर थिंग. जो अब हम इम्प्लांट भी है हमारी बास्केट में 2023 से, बट इसको हमने फिर अब जल्दी रोल आउट करना शुरू कर दिया है. सो आई सेड 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 12 फैसिलिटीज, एंड देन 2 मोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोर फैसिलिटीज. तो इसके लिए हम 2 लोगों को ट्रेन करते हैं पर फैसिलिटी, एक डॉक्टर को, एक सिस्टर, ताकि डॉक्टर सुपरवाइज कर सके और जो सिस्टर है वो बहुत अच्छे से इसको लगा सके. सब एवरीबडी विल से कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज नॉट अ वेरी टफ थिंग, इवन डायबिटिक्स डू इट देमसेल्व्स, मगर ये एक ना यूनिजेट सिस्टम है जिसको लगाने से पहले एक्टिवेट करना पड़ता है. तो और इसकी एक टेक्निक जो हम 2-3 चीजें ध्यान रखने की बताते हैं कि कितनी देर इसको दबा के रखना है, काउंट करके रखना है, कैसे कैसे इसको धीरे धीरे ऐसे शेक करना है, और एक्टिवेशन को बहुत ध्यान से करना है पूरा दबा के, ताकि ये एक्टिवेट होके दवाई बीच में जाए, और डालने के बाद हम उसको कैसे ये करें. तो ये तो एक रिविजन टाइप हो गई जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली है, और जिन लोगों ने नहीं करी उनके लिए एक प्रेपरेटरी नॉलेज हो गई कि दे विल गो फॉर द ट्रेनिंग फॉर ऑलरेडी एनेबल्ड विद दिस नॉलेज, है ना. तो आइडियली अब मैं अगर इन दोनों की बात करूं, आईएम लग रहा होता है तो हर 3 महीने आईएम ही लगाना है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है. 3 महीने दोनों को लगाना है. जो फेलियर रेट है वो सेम है, जो एक्चुअली फेलियर रेट बहुत कम है ना, लेस देन 1% को हम वेरी एफिकेशियस कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. तो ये उसमें आता है. लॉन्ग एक्टिंग में आता है क्योंकि 3 महीने काम करता है ना, मगर एक्चुअली लॉन्ग एक्टिंग हमारे इम्प्लांट और वो है, बट देन ऑफ कोर्स इसमें 3 महीने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. और इसमें जो ग्रेस पीरियड होता है वो 4 हफ्ते होता है. तो अगर चौथे महीने में भी वो थोड़ा सा डिफॉल्ट कर जाती है, शी कैन कम बैक फॉर द इंजेक्शन. और इनफैक्ट हमें याद करवाना है ना, कि आना है आपको. तो हम जब भी इंजेक्शन लगाते हैं हम ये कार्ड देते हैं,
और हम यहाँ पर एंट्री करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर एंट्री करते हैं कि इंटरवल लगाया, पोस्ट अबॉर्शन लगाया, पोस्ट, यहाँ पर हम सारा एलएमपी वगैरह करते हैं, कैसे हमने प्रेगनेंसी रूल आउट करी। यहाँ पे उसकी डेमोग्राफिक और वो डिटेल्स रहती हैं ना, कि पहले क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही थी, कितने बच्चे हैं। तो इस कार्ड को हम अच्छे से भरें, नो कार्ड नो इंजेक्शन का डिक्टम फॉलो करें, और जब वो वापस आए, नहीं आए तो हम उसको याद भी कराएं। एक टिकलर बैग टाइप हम लगा के रखें, या कोई भी शेल्फ्स बना के रखें महीने वाइज, या फोल्डर्स बना के रखें महीने वाइज, और हम उनको बुलाएं। तो जब हम ये ट्रेनिंग्स, मैंने बताया, एक्सपेडाइट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, एक रीजन कि हम रोल आउट करना चाहते हैं। पहले स्लो कर रहे थे, कमोडिटी कम थी, अब हमारे पास कमोडिटी है। दूसरा, क्योंकि इसका चेन ब्रेक हो गई, लॉजिस्टिक चेन। तो अब जो इस पे चल रहा है वो इस पे चलेगा, जो इस पे चल रहा है वो इस पे चलेगा। मैं ये भी बताऊंगी कि इसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए सिलेक्शन के, है ना, कि हम किसको ये लगाएं, किसको ये नहीं लगाएं। मगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि ये अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी में, या ये वुमन पहुंच जाती है किसी ऐसी फैसिलिटी में, मान लो जैसे ये सिर्फ 10 स्टेट्स में है अभी सबक्यूटेनियस, है ना, एक दो में और हुआ है, तो 12 स्टेट्स में है। तो अगर ये वुमन दिल्ली में ये लगवा के हरियाणा चले जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ये बिल्कुल नहीं लगा सकते, बट आइडियली वी वांट टू फॉलो द सेम इंजेक्शन, है ना। और एक बार वुमन ने ये प्रेफर कर ही लिया तो कर लिया। अब कमिंग टू के ये लगाएं कि ये लगाएं, अगर दोनों अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, वुमन को चॉइस देंगे, ठीक है। तो मगर वो पूछेगी ये फायदेमंद है कि ये फायदेमंद, हम बोलेंगे दोनों एक जैसे हैं, इट इज योर चॉइस। इसमें ये है कि पोटेंशियल है कि थोड़े टाइम बाद जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी वो खुद लगा पाएगी, है ना, क्योंकि इसको बहुत आसान है। इसकी 3 साइड्स होती हैं, यहाँ लगा लो, या एब्डोमेन में लगा लो, या थाई पे लगा लो। तो थाई और एब्डोमेन में खुद भी हम लगा सकते हैं, तो वो लॉन्ग रन की बात है। मगर ग्लोबली दिस इज यूज्ड फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो और बाकी कोई फायदे नुकसान अलग से नहीं है इनके। और ये सुई थोड़ी छोटी होती है, तो हो सकता है किसी सर्विस प्रोवाइडर या किसी परसीवर, किसी क्लाइंट को लगे कि ये कम पेनफुल होगा, बट वी ऑल नो दैट आईएम इंजेक्शन ऑल्सो, कितने तो इम्यूनाइजेशन में हम बच्चों को लगवाते हैं, तो आईएम वो लगवा ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ पेनफुल प्रोसीजर तो वो भी नहीं है। हैविंग सेड दिस, हम ये करेंगे कि सिलेक्शन उसको, ऑप्शन हम उसको देंगे, और मगर हम ये ध्यान रखेंगे कि ये वही लगवाएं जो वापस उसी फैसिलिटी पे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हर जगह लगेगा, पूरे इंडिया में सब स्टेट्स में ये है। ये कार्ड लेके वो पहुंचेगी, कहीं की कहीं पहुंच जाए, ये लग जाएगा कार्ड दिखा के कि अच्छा बेटा अब ड्यू आपका था, अब हम लगा देते हैं और यहाँ नोट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम यू कैन गो बैक टू योर पेरेंट फैसिलिटी। मगर ये जब लगेगा तो ये हर जगह नहीं है, ये उस क्लाइंट को पता होना चाहिए कि ये अगर आप लगवा रहे हो तो यू हैव टू कम बैक टू अस, है ना, क्योंकि ये हर फैसिलिटी में और हर स्टेट में नहीं मिलेगा। सो दिस आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव। हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को, मैं ये नहीं कह रही इसको प्रमोट करें, हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को इसके बारे में बताएं, और जो ये चुनना चाहती हैं उनको खुली चॉइस दें, एम्पावर करें। और जो ये चुनना चाहती है वो इससे खुश भी रहेंगी, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो हम इनको बताएं, है ना। द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स आर ऑल दोज विच आर रिलेटेड टू हार्मोनल मेथड्स, दैट दे आर वेरी इफेक्टिव। ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट हो गया। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव की वो अनीमिया कम करता है, वो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन एंडोमेट्रियोसिस, ऑन अदर गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एयूवी एंड मेनोरेजिया एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो उन सब में ये जो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से विमेन में लाइक इट, सो वी मस्ट टेल देम। सो मोर एंड मोर विमेन शुड यूज दिस, नॉट स्विचिंग फ्रॉम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उनको ल्योर नहीं करना है कि देखो ये नया है ये लगाओ, बट जिसको इसके फायदे नजर आ रहे हैं वो इसको जरूर लगाएं, ताकि जो आज की डेट में अनमेट नीड चल रही है, जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है वो बढ़ जाए, है ना। तो इस जो हमारे को एक सौगात मिली है कि हम एक और मेथड ऑफर कर पा रहे हैं विमेन को, तो वो हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, एंड द विमेन शुड बी हैप्पी यूजिंग दिस। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट इम्प्लांट। एंड ऑफ कोर्स एक अपील है कि हम उसको भी साथ की साथ प्रमोट करें, और जिन विमेन को लॉन्गर एक्टिंग चाहिए एलएआरसी, वो इम्प्लांट के लिए किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। दिस वी शुड नो कि पहले सिर्फ हमने 5 अस्पतालों में शुरू किया था, तो अभी दिल्ली के सभी अस्पतालों में ये अवेलेबल है। तो इम्प्लांट को भी हम साथ साथ गाइड करना है कि अच्छा इम्प्लांट लगाना है तो इस जगह जाओ, ये लगाना है तो इस जगह जाओ। तो एक मुहिम के साथ वी शुड हैव अ मिशन दैट वी शुड नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और मेल्स को भी इसके बारे में बताएं, ताकि मतलब सास बहू सम्मेलन में या फैमिलीज में, और बहुत सारे हमारे को एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो जो जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स होते हैं वो भी आगे इसको प्रमोट करें। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, डिमांड जनरेशन एंड सर्विस प्रोविजन। सो ऑल द बेस्ट।
and see you next time.